Dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are again start exercise 4F. This is the second part of this exercise. Before it, we have solved at till to the question number 3. So we are start today from question number 4. Okay. Question number 4 says divide the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3 by their difference. Okay. What is the meaning of this question? Question says the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3. Okay. This sum is divided by the difference of 65 upon 12 and 8 upon 3. Okay. So this is represented in the form of a statement as like this. Sum of this 65 upon 12 plus 8 upon 3. This is the sum of two rational numbers. Okay. This is the sum. Sum is divided by the difference of these two rational numbers. Means 65 upon 12 minus 8 upon 3. Okay. This question is represented in the form of statement. So we have solved this question. We take LCM 12 and 3. LCM of 12 and 3 is student 12. Okay. So this is represented in the form of same denominator. 65 upon 12 multiply 1 multiply 2. Okay. Here is plus sign. 8 upon 3. 3 for the student 12. Then it is equal to LCM value. So numerator is also multiplied by 4. Okay. This process is complete here. After that, here is divide sign. So represent same divide sign at the same place of this statement. Okay. So we take here also LCM. The LCM is also same here. Means 3 and 12. LCM of 3 and 12 is 12. So we represent both the rational number as the same denominator form. 12 multiply 1, 65 multiply 1. Here is represent minus sign. 8 upon 3. You know that 3 4s are 12. So we multiply numerator and denominator of the second fraction by 4. Second rational number by 4. Okay. 65 ones are 65 here and 12 ones are 12 here. Okay. Plus 8 4s are 32 upon 3 4s are 12. This bracket is closed. Here represent also divide symbol. Okay. 65 ones are 65 upon 12 ones are 12 minus 8 4s are 32 upon 3 4s are 12. Okay student? After we add, because your denominator is same, so we add the numerator. We add the numerator. Numerator 65 plus 32. 2 plus 5, 7. 3 plus 6. 3 plus 6, 9. Okay? Here represent divides. Denominator same. So we subtract the 32 from the 65. 5 minus 2 is 3. 6 minus 3 is 3. Okay? After that student, this becomes 97 upon 12. Here represent multiply symbol and write the reciprocal of the second rational number. Okay? This becomes 12 upon 33. Okay? After that, 12 divide by 12. 12 ones are 12, 12 ones are 12. Okay student? And we check here if any common factor in 33 and 97, then both the number is divided by that number. But we have no common factor in 65
97 and 33 other than 1. So we write here 97 multiply 1 upon 1 multiply 33. This becomes 97 upon 33. Okay student? That's your answer. Okay student, that's your answer. Write this. After that beta, next question. So we erase this question. Question number 5. By what number should minus 44 upon 9 be divided to get minus 11 upon 3? Okay. Meaning of this question, वो क्या नंबर है, ठीक, जिससे माइनस 44 अपॉन 9 को डिवाइड किया जाए तो हमको क्वेश्चन माइनस 11 अपॉन 3 फाइंड हो. ठीक है बेटा. तो इसको पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं. कुछ मेथड्स मैंने आपको बताया था बिफोर दिस. ओके. इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट सम precious method. Okay. If you have learned that, then you can easily solve the question. Okay. Yes. Firstly, we write the question. By what number should minus 44 upon 9 be divided to get minus 11 upon 3. ओके. तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर x है. ओके. सॉल्यूशन. Let dividing number be x. Divisor be x. ओके. जिससे डिवाइड करना होता है बेटा, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है किसी डिविडेंड वैल्यू को, उसको हम डिवाइडर कहते हैं. ठीक. ये हमने x. तो मैंने कंडीशन यही बताया था बेटा, किसको फाइंड करना, डिवाइजर को. क्या गिवन है बेटा, डिविडेंड गिवन है. ठीक. डिविडेंड गिवन है और क्वोशिएंट गिवन है. ठीक. क्वोशिएंट इज इक्वल टू बेटा डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, माइनस 44 अपॉन 9. ओके. और बेटा क्या गिवन है, क्वोशिएंट. क्वोशिएंट है बेटा माइनस 11 अपॉन 3. ठीक. और हमने डिवाइजर को x सपोज कर लिया. ठीक. जब बेटा हमने बताया कि अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है तो ऐसे कंडीशन में जब आपको डिवाइजर फाइंड करना होता है तो डिवाइजर इज इक्वल टू होता है बेटा, आप जानते हैं ना, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट.
या फिर इसी को मैंने ये भी बताया था कि डिविडेंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का बेटा आप रेसिप्रोकल यहाँ पे राइट कर देंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डिवाइजर। तो इसी में आप डायरेक्ट पुट करोगे क्योंकि उसमें फिर से आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डिवाइड सिंबल रिप्लेस करके, तो आप इसी में डायरेक्ट पुट करोगे। ओके बेटा, तो इसमें हम पुट करते हैं, देखिए x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा -44/9, ठीक, और मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ये इसका रेसिप्रोकल बेटा हो जाएगा -3/11, या फिर माइनस यही लगा दो, चलो माइनस माइनस साइन यहाँ पे देखो ऊपर नीचे रहता तो कैंसिल हो जाता है, 11 बन जाएगा, 11 4 जा 44, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो बेटा यहाँ से कितना हो गया, देखिए 4 × 1/3 × 1, 4/3, ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक, यही आपका आंसर हो गया, यही वो नंबर है जिससे अगर आप -44/9 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा -11/3 आएगा। ओके, तो इसको बेटा सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट, तो वहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बेटा, तो चलो इसको आपने राइट ही कर लिया होगा, अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, 6 कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -8/15 इसको हटाइए, 8/15 be multiplied to get 24। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा -8/15 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे में क्वेश्चन 24 हो जाए। लेट मल्टीप्लाइंग नंबर bs, हमने मल्टीप्लाइंग नंबर को x सपोज कर दिया बेटा, तो इसी नंबर के साथ x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय -8/15। ओके, कितना आ रहा है बेटा आंसर, तो कितना आना चाहिए 24, ये मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई बेटा जो न्यूमरेटर है, ठीक, वो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये देखो ये 15 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यहाँ से नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक, मल्टीप्लाई भी है, ठीक, ये सोचो इधर जब बेटा जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 24/1², और ये इधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक बेटा। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है अंदर साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/8 कर लो,
ठीक, मैंने बताया कि हमेशा माइनस को ऊपर वाले पे ही लगाओ। अब देखो 8 1 8, 8 3 24। अब बेटा आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 3 मल्टीप्लाई -15 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1। तो डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो राइट करने की जरूरत ही नहीं है। 15 3 बेटा 45 और यहाँ पे माइनस साइन ये राइट, यही हो गया आपका बेटा आंसर। इसको भी राइट कर लो। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। सेवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10। The product of two rational number is 10. Okay बेटा, 10 है। If one of the numbers is 8, one of the numbers is, उन नंबरों में से कोई एक is है -8, उन नंबरों में से कोई एक नंबर -8 है। फाइंड द अदर, तो अदर नंबर को फाइंड करना है। स्टेटमेंट के फॉर्म में, अब ये जो बेटा क्वेश्चन है इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। लेट अदर नंबर बी एस, अदर नंबर को हमने ऐसे कुछ कर दिया। देयरफॉर बेटा किसका किसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10। प्रोडक्ट कितना होता है 10, और वन ऑफ द नंबर्स इज -8, उनमें से एक नंबर है -8, तो अदर नंबर कितना होगा यस। तो बेटा -8 मल्टीप्लाई x, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 10, ये गिवन है, ठीक। अब देखो x इक्वल टू, ये इधर जाएगा बेटा, यहाँ पे भी ऐसे राइट करो, मैं कंफ्यूज हो गया। x मल्टीप्लाई -8 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। 10 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 8, ठीक, 8 अपॉन 1 ऐसे समझ लो, ये आपका हो गया। अभी देखो 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर में राइट कर लो। 2 4 द 8, ठीक, 2 5 द 10। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल टू 5 1 द 5 -5 अपॉन 4 द 4, ये हो गया, ठीक। एट को बेटा आप करेंगे और 9 को बेटा आप करेंगे, दोनों को आप करेंगे। क्वेश्चन मैं राइट कर दे रहा हूँ। 9 तो बेटा और भी इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बस दूसरे साइड जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज रेशनल नंबर के फॉर्म में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसका रेसिप्रोकल आपको करना और भी इजी रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये होगा, और सॉल्यूशन में आप हमेशा यही राइट करेंगे, लेट अदर नंबर बी एस, नंबर
डी है, इसको आपको पुट कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? 8 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 is -9. The product of two rational number is -9 if one of the numbers is -12. कितना बेटा? -12. फाइंड द अदर, तो अदर को फाइंड करना है, ठीक है बेटा? तो ऐसे इसको भी सपोज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा आते हैं। 9 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16 upon 9. -16/9 ये टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/3 फाइंड द अदर, तो दूसरे को फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट बेटा आपको पता है कैसे बनेगा, ठीक है ना? x मल्टीप्लाई -4/3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? -16/9। ओके बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -16/9 मल्टीप्लाई, ये इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/4, या फिर यही करो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और बेटा इसको सॉल्व करके 4/4 4/16 3/3 3/9, ठीक। ये बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4/3, यही हो जाएगा। मैंने सॉल्व ही कर दिया। चलो और क्वेश्चन नंबर ये तो कर दिया, 8 को देख लीजिएगा कैसे करेंगे, फिर से दिखा दे रहा हूँ भाई। ये 8 ना, 8 में देखिए नंबर ऐसे ही सपोज करेंगे बेटा, यही हो जाएगा x मल्टीप्लाई -9 है बेटा। x को ये तो प्रोडक्ट है, x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू कितना है बेटा? -9। अब बेटा इधर देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9/1 इसको राइट कर सकते हैं, और ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 राइट कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई 1/-4 माइनस माइनस पहले कैंसिल कर लो, 3 3 का 9 3 4 12 होता है। अब देखो x इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 4, तो 3/4 हो गया, ये आंसर हो गया। अब बेटा है आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बाई व्हाट रेशनल नंबर by what rational number should -8/9 -8/39 be multiplied to obtain 5/26। कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 5/26 हो जाएगा। ओके बेटा, इसका बेटा देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जस्ट अभी इसके पहले मैंने बताया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग नंबर को सपोज कर लेंगे, लेट मल्टीप्लाइंग नंबर दिया
स्टेटमेंट में इसको राइट कर देते बेटा, x मल्टीप्लाई, वो नंबर क्या है -8/9 से 8 -8/39 को x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट 5.26, तो x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 5.26, ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके, -39/8, ओके बेटा, 13 टू द 26, 13 टू द 39, ठीक, और कुछ कैंसिल नहीं होगा बेटा, तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई 4, ओके, so 5 to the 15 minus 15 8 to the 16, that's your answer। तो बेटा आज के वीडियो में बस ओनली इतना ही, और यहाँ से जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है लास्ट के, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ओके स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना इनफ है स्टूडेंट, इसको पूरा कंप्लीट करिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही आपके नज़दीक पीरियडिक टेस्ट फर्स्ट, और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा बेटा, ठीक है ना। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, ठीक, लेंथी क्वेश्चन पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक, ओके, थैंक यू।